Hello friends, how are you? Welcome to Srinder Study Solution. Today we are going to discuss about your class 12th Fundamentals of Human Geography. Lesson 8, Transport and Communications. Transports and Communications, this is the second part of this chapter. In previous part we have discussed about means of transports or mode of transports, land transports, water transport, and now in this video we will discuss about air transport. Air transport Air transport is the fastest means of transport, but it is very costly. Being fast, it is preferred by passenger for long distance travel. जिन लोगों को काफ़ी दूर का ट्रैवल करना होता है काफ़ी कम टाइम के अंदर, तो वो तब इसे प्रेफरेंस दिया जाता है और सबसे फास्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, लेकिन सबसे कॉस्टली भी है. ओके. Valuable cargo can be moved rapidly on a worldwide scale. It is often the only means to reach inaccessible areas. It is often the only means to reach inaccessible areas. तो जहाँ पर जैसे हिली एरिया है, तो जहाँ पर ओनली मीन्स टू रिच, ये आप देखते हैं कि जहाँ पर ट्रेन जो रेल है, रेल को पहुँचाना बड़ा मुश्किल है, सड़कों को पहुँचाना बड़ा मुश्किल है, तो पाइपलाइन को पहुँचाना मुश्किल है, लेकिन बाई एयर्स आप वहाँ तक एक्सेसिबिलिटी मिल जाती है आपको. एयर ट्रांसपोर्ट हैज़ ब्रॉट अबाउट ए कनेक्टिविटी रिवोल्यूशन इन द वर्ल्ड. तो एयर ट्रांसपोर्ट्स ने जो है ना एक कनेक्टिविटी रिवोल्यूशन लेके आया है. तो जिसने आप देख रहे हैं यहाँ से अमेरिका, अमेरिका से इंडिया, अमेरिका से रसिया, तो ये ऐसे कंट्रीज की आपस में कनेक्टिविटी बनाई है. तो ये एक रिवोल्यूशन जो लेके आया है वो एयर ट्रांसपोर्ट ही लेके आया है. वरना बाई ट्रेन तो ट्रैक बनाना पड़ता, सड़कें बनानी पड़ती, बनाई जा रही हैं अभी, तो टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन क्विक जो सर्विस प्रोवाइड हो रही है वो एयर ट्रांसपोर्ट ने दी है. The frictions created by mountainous snow-filled or inhospitable desert terrains have been overcome. The accessibility has increased. The airplane brings various articles to the Eskimos in North Canada unhindered by frozen grounds. In the Himalayan region, the routes are often obstructed due to landslides, avalanches, or heavy snowfall. At such times, air travel is the only alternative to reach a place. Airways also have great strategic importance. The air strikes by USA and British force in Iraq bears testimony of this fact. The airways network is expanding very fast. क्लियर पॉइंट. तो जहाँ जहाँ एक्सेसिबिलिटी नहीं हो सकती वहाँ पर जहाँ ट्रांसपोर्ट की एक्सेसिबिलिटी नहीं हो सकती उसको प्रोवाइड कर सकती है, तो वो कौन कर सकती है? एयर ट्रांसपोर्ट कर सकती है. एट प्रेजेंट नो प्लेस इन द वर्ल्ड इज मोर देन 35 आवर्स अवे. आज अगर हम बात करें पूरे वर्ल्ड में, अगर ग्लोब पे देखें राउंड लगा के, तो कोई एक ऐसा जगह नहीं है जिसको 35 आवर्स में पूरा कंप्लीट ना किया जा सके. जैसे आप न्यूयॉर्क से इंडिया, इंडिया से न्यूयॉर्क, या रसिया में जो आपका मॉस्को है, मॉस्को से लंदन, लंदन से न्यूयॉर्क या वाशिंगटन, तो ऐसे आप ट्रैवल करते हो, तो कोई ऐसी जगह नहीं है जो 35 आवर्स से ज़्यादा टाइम ले आप कवर कर सकते हो पूरी अर्थ को. कंप्लीट है. दिस स्टार्ट line startling fact has been made possible due to people who build and fly airplanes. Travel by air can now be measured by hours and minutes instead of years and months. Frequently, services are available to many parts of the world. Although UK pioneered the use of commercial jet transports, USA developed largely post-war international civil aviation. Today, more than 250 commercial airlines offer regular service to different parts of the world. तो एयरवेज में सबसे आगे जो यूके पॉइंटेड द यूज ऑफ कमर्शियल जेट ट्रांसपोर्ट. तो अगर जेट ट्रांसपोर्ट्स को कॉमर्स में यूज करता है तो कौन है? यूके है. ठीक है. तो जो ट्रांसपोर्ट से कमर्शियल प्रोडक्ट को भी यहाँ से वहाँ भेजता है. यूएसए डेवलप्ड लार्जली पोस्ट वार इंटरनेशनल सिविल एविएशन. टुडे मोर देन 250 commercial airlines offer regular service to the different parts of the world. Recent developments can change the future course of air transport. Supersonic aircraft cover the distance between London and New York within
3.5 आवर्स। तो अगर बात करें जो सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट होते हैं जो काफी फास्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, लंदन से न्यूयॉर्क का डिस्टेंस ओनली 3.5 आवर्स में कंप्लीट कर देंगे। कहाँ से? लंदन से लेके न्यूयॉर्क। तो लंदन कहाँ है? यूरोप में, और न्यूयॉर्क कहाँ है? अमेरिका में। तो ये डिस्टेंस 3.5 आवर्स में कंप्लीट कर लिया जाएगा सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट के द्वारा। तो हम कह सकते हैं कि जो एयर ट्रांसपोर्ट है वो क्विक सर्विस है सबसे। इंटरकॉन्टिनेंटल एयर रोड्स, तो इंटरकॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट को आपस में, जैसे इंटर ट्रांस कॉन्टिनेंट था, तो ऐसे ही in the northern hemisphere there is a distinct east-west belt in the of intercontinental air routes. dense network exist, जहाँ पर सबसे ज़्यादा dense जो नेटवर्क है एयर लाइंस का, जो ज़्यादा जहाज जाते हैं आते हैं, तो वो है ईस्टर्न यूएसए और वेस्टर्न यूरोप और साउथ ईस्ट एशिया। जो ये कॉन्टिनेंट है, इनके इन पार्ट्स में मैक्सिमम आपको एयर रूट्स ज़्यादा देखने को मिलेंगे। USA alone account of 60% of the airways of the world. New York, London, Paris, Amsterdam, Frankfurt, Rome, Moscow, Karachi, New Delhi, Dubai, Bangkok, Singapore, Tokyo, San Francisco, Los Angeles, and Chicago are the nodal points where air routes converge or radiate all continents. अफ्रीका, एशियाटिक पार्ट ऑफ रसिया एंड साउथ अमेरिका लैक एयर सर्विसेज। जो अफ्रीका है, एशियाटिक पार्ट ऑफ रसिया, रसिया का जो एशियाटिक एरिया है, और जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, एंड साउथ अमेरिका लैक ऑफ एयर सर्विस। इन एरियो में आपको एयर सर्विस बहुत कम देखने को मिलेगी। कौन कौन से हैं? अफ्रीका, एशियाटिक पार्ट ऑफ रसिया, रूस का जो एशिया वाला पार्ट है, और साउथ अमेरिका के अंदर आपको एयर सर्विस थोड़ी लैकनेस मिलेगी उसकी। देयर आर लिमिटेड एयर सर्विसेज बिटवीन 10 to 35 लैटिट्यूड 10 to 35 डिग्री लैटिट्यूड्स इन सदर्न हेमिस्फीयर ड्यू टू स्पार्सिस पॉपुलेशंस, लिमिटेड लैंड मास एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स। या आपको सबसे कम, अगर हम बात करें ग्लोब पर, जब आप देखते हैं तो ग्लोब पर जो 10 से 35 डिग्री लैटिट्यूड का जो एरिया है, वहां पर भी आपको बहुत कम सर्विस देखने को मिलेगी। अब इसमें कुछ पूरे वर्ल्ड्स के अंदर जो एयरपोर्ट हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, वो आप देखेंगे। एक एक कॉन्टिनेंट को ले लेते हैं, जहाँ से आपके मैपिंग में क्वेश्चन आएगा और पूछेगा कि ये जो एयरपोर्ट है ये नाम क्या है, किस एयरपोर्ट का और किस लोकेशन पे है। तो सबसे पहले बात करेंगे अमेरिका। तो अमेरिका कॉन्टिनेंट्स के अंदर कुछ जो एयरपोर्ट है, जैसे वैनकूवर, वैनकूवर तो वैसे भी याद था आपको, यहाँ से ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे भी आया, ठीक है, ट्रांस हाईवे भी आया, ट्रांस जो आपका कैनेडियन हाईवे, ट्रांस कैनेडियन रेलवे भी आया, ठीक है। मॉन्ट्रियल, यहाँ पे न्यूयॉर्क, टोरंटो, विनीपेग, एडमंटन, और यहाँ पर आपका आपका सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजल्स। सैन फ्रांसिस्को ऊपर है, लॉस एंजल्स से नीचे है, ये क्लियर है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजल्स। फिर यहाँ न्यूयॉर्क से ऊपर है बोस्टन, और बोस्टन के वेस्ट में टोरंटो, नीचे है शिकागो, शिकागो से नीचे है फोर्ट वर्थ, और उससे नीचे है मियामी, यहाँ पे है फ्लोरिडा के आसपास है मियामी, और इसके बाद मेक्सिको सिटी। तो ये आपने नॉर्थ अमेरिका में याद रखने हैं, यहाँ पर है हडसन, ठीक है। तो ये आपने एयरपोर्ट याद रखने हैं नॉर्थ अमेरिका के अंदर। अब बात करते हैं साउथ अमेरिका, जहाँ पर लैकनेस ऑफ एयर सर्विसेज हैं बहुत कम, है ना। तो यहाँ ब्राजील्स की जो कैपिटल है ब्रासिलिया, ब्रासिलिया में एयरपोर्ट है, और इसके नीचे है रियो डी जनेरियो, तो रियो डी जनेरियो। फिर यहीं पर है ब्यूनियोस एरिस, ब्यूनियोस एरिस एक रूट आता है जो ट्रांस अमेरिकन, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट कह सकते हैं हम। सेंटिगो, सेंटिगो इंपॉर्टेंट है, तो ये सेंटिगो आपको याद यहाँ पे याद रखना है। लीमा और कारकेस, ठीक है। तो ये एयरपोर्ट आपने साउथ अमेरिका में याद रखने हैं। अब आते हैं अफ्रीका में, तो जहाँ पे भी लैकनेस ऑफ एयर सर्विसेज है, साउथ सॉरी जो अफ्रीका, अफ्रीका में यहाँ पे आपने नोट करना है केप टाउन। साउथ अमेरिका में केप टाउन से ऊपर है जोहान्सबर्ग, तो जोहान्सबर्ग, जोहान्सबर्ग के बाद आपको सिसली, ये याद रखना है, सिसली, सिसली आइलैंड पे है। और फिर ये पोर्ट लुइस, पोर्ट लुइस यहाँ पे है, ठीक है। तो सिसली, पोर्ट लुइस, एडिस अबाबा, एडिस अबाबा यहाँ पे है आपका एडिस अबाबा, ठीक है। तो ये आपने याद रखने हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके बाद जो बात करेंगे यहाँ पर डाकर, डाकर एयरपोर्ट है, एक्रा, एक्रा एयरपोर्ट है, लेगोस, ठीक है। तो याद हो जाएंगे आपके।
के नैरोबी, नैरोबी याद रख लेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट आता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर कौन कौन से एयरपोर्ट हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये जानते हैं आप, सिडनी को पर्थ से कनेक्ट करने वाला ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवे था, तो पर्थ है, सिडनी है, ठीक है। फिर न्यूजीलैंड में जो इसी का पार्ट है ओकलैंड, ओकलैंड लास्ट ईयर भी आया था आपके एग्जाम में कि ओकलैंड आई एयरपोर्ट, जो एयरपोर्ट की मैपिंग में दिया हुआ था तो लोकेशन पूछा था इसका नाम क्या है, तो ओकलैंड है। वेलिंगटन, वेलिंगटन और ऑकलैंड ये आपके न्यूजीलैंड में आते हैं। फिर यहाँ डार्विन और नॉर्थ पार्ट में आता है डार्विन, और डार्विन तो वैसे भी याद होगा आपको, जब कॉन्टिनेंट स्टुअर्ट हाईवे जब हम पढ़ रहे थे तो डार्विन से यहाँ तक की जो कनेक्टिविटी आ रही थी, ठीक है। तो यहाँ पर आता है जकार्ता, सिंगापुर, कुआलालंपुर, कुआलालंपुर, ठीक है। तो ये एयरपोर्ट याद रह जाएंगे आपको ऑस्ट्रेलिया में। इसके बाद आता है यूरोप, तो यूरोप में कौन कौन से हैं। यूरोप में यहाँ पे आप देखेंगे मैड्रिड, मैड्रिड, मैड्रिड के बाद यहाँ पे पेरिस, पेरिस के बाद लंदन, लंदन के बाद ब्रिंग ब्रिंगम, ठीक है, लंदन के बाद ब्रिंगम। और इसके बाद यहाँ पे एम्स्टर्डम, एम्स्टर्डम के बाद स्टॉकहोम, स्टॉकहोम के ईस्ट में पिट्सबर्ग, पिट्सबर्ग से नीचे मॉस्को, यहाँ पे बर्लिन, बर्लिन से नीचे फ्रैंकफर्ट, फ्रैंकफर्ट से नीचे जिनेवा और फिर रोम। क्लियर, ये पॉइंट नोट हो जाएंगे। ये यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर जो मेन नेशनल या जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इसके बाद आता है एशिया, एशिया में कौन कौन से हैं। तो एशिया में नोट करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट जो चेन्नई है, ढाका है, कोलकाता है, मुंबई है, न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली अमृतसर, कराची। अब इसके बाद आ जाओ अब जापान में, तो जापान में टोक्यो, ओसाका, टोक्यो और ओसाका। फिर यहाँ पे हांगकांग, हांगकांग के नीचे बैंकॉक, बैंकॉक के नीचे ईस्ट में जो है मनीला, फिलीपींस की जो कैपिटल है मनीला, ठीक है। फिर उसके बाद संघाई, यहाँ पे है संघाई। और यहाँ पे बीजिंग, बीजिंग के बाद यहाँ व्लादिवोस्टॉक, व्लादिवोस्टॉक तो वैसे भी याद हो जाएगा आपको क्योंकि रसिया में जब आप व्लादिवोस्टॉक से मॉस्को तक का एक रूट निकाले थे, ठीक है। और उसमें कुछ रास्ते भी आ रहे थे जो इरकुटस्क, इरकुटस्क जो लोकेशन थे वो एक एयरपोर्ट भी बन रहा है, ओम्स्क, ओम्स्क, ठीक है। नोवोस ब्रिक्स, नोवोस ब्रिक्स ये लोकेशंस है। तो उसी रूट पे पिट्सबर्ग, यहाँ पे सेंट पिट्सबर्ग से जो ये रूट्स आ रहा है तो उसी पे आपको एयरपोर्ट दिखाई देंगे, ठीक है। तो ये एशिया में यहाँ जेडा, जेडा के बाद आदेन, ठीक है, तेहरान, तो ये तस्केंत, ये एयरपोर्ट आते हैं एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर। अब बात करते हैं मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट्स के अंदर, जब हमें लैंड वाटर एयर को कंप्लीट कर चुके तो बात आती है पाइपलाइंस की। तो पाइपलाइंस कैसे इंपॉर्टेंट होती है मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स के अंदर। पाइपलाइंस, pipelines are used extremely to transport liquids, gas such as water, petroleum, and natural gas for an uninterrupted flow. Uninterrupted flow. Water supplied through pipelines is familiar to all. Cooking gas or LPG is supplied through pipelines in many parts of the world. Pipeline can also be used to transport liquid fuel, liquefied coal, sorry, जो कोयला होता है जिसको लिक्विफाइड किया जाता है, लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, तो उसको भी ट्रांसफर कर सकते हैं हम पाइपलाइन से। ए न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड के अंदर क्या है, मिल्क इज बीइंग सप्लाइड थ्रू पाइपलाइन फ्रॉम फार्मर टू फैक्ट्रीज। तो जो बड़े बड़े फार्म है न्यूजीलैंड के अंदर और वहाँ से उस फार्मर एरिया से जो दूध होता है उस दूध को सीधा फैक्ट्री के अंदर पाइपलाइन से ही पहुंचाया जाता है, क्योंकि इतना ज़्यादा क्वांटिटी में होता है कि डेली ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत नहीं होती, तो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया अपना, पाइपलाइन से ही पानी जो है मिल्क को सप्लाई करते हैं, ठीक है। तो कुछ कौन सा कंट्री है, न्यूजीलैंड। इन यूएसए देयर इज ए डेंस नेटवर्क ऑफ ऑयल पाइपलाइंस फ्रॉम द प्रोड्यूसिंग एरिया टू द कंज्यूमिंग एरिया। Being inch big inch is one such famous pipelines which carries petroleum from the oil wells of the Gulf of Mexico to the northeastern state. About 17% of all freight per ton kilometer is carried through पाइपलाइन इन यूएसए। तो सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट जैसे यूज किया गया डेंसिटी के अकॉर्डिंग जो सबसे ज़्यादा पाइपलाइन देखने को मिलेंगी वो आपको यूएसए जैसे कंट्री में देखने को मिलेंगे। In Europe, Russia, West Asia, and India, pipelines are used to connect oil wells to refineries and to ports and domestic markets. Turkmenistan is Central Asia, has extended pipelines to Iran and also to parts of China. The proposed Iran-India via Pakistan international oil and natural gas pipelines will be the longest in the world. तो पूरे वर्ल्ड में एक पाइपलाइन बिछाई जाएगी जो ईरान, इंडिया और वाया पाकिस्तान, ईरान से इंडिया के लिए जो सप्लाई होगी वो होगी
वाया पाकिस्तान से होते हुए होगी तो वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट पाइपलाइन मानी जाएगी, जो प्रपोज्ड है अभी बनाई जा रही है। तो जो ये पाइपलाइन ईरान से जो आ रही है, तो ऐसे वाया पाकिस्तान से होते हुए ये दिल्ली के तक पहुंचने की, ऐसे ये जो ओरिजिनल रूट बनाया गया था, लेकिन न्यू रूट अभी कन्वर्ट कर दिया गया, तो न्यू रूट ये निकाला गया है जो ये वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से वर्ल्ड की सबसे बड़ी लंबी पाइपलाइन होगी जो ईरान से इंडिया आ रही होगी। क्लियर पॉइंट। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है भाई? Communications. Even today, the telephone is the most commonly used mode. In developing countries, the use of cell phones made possible by satellites is important for rural connectivity. Today, there is a phenomenal pace of development. The first major breakthrough is the use of optic fiber cables. Optic fiber cables use की जाती हैं भाई, तो इन केबल्स के द्वारा ही कनेक्टिविटी होती है। अगर मान लो आप इंडिया से फ़ोन मिला रहे हैं, तो इंडिया से फ़ोन जो अमेरिका को लगेगा, तो वायर वायर के थ्रू ही उसकी कनेक्टिविटी है। वहाँ पे जो टावर है, उस टावर तक आपकी कनेक्टिविटी जाती है, तो उसको बोलते हैं ऑप्टिक फाइबर केबल्स माना गया। तो पूरी केबल बिछाई गई है पूरे वर्ल्ड के अंदर, तब जाके आपका इंटरनेट या फ़ोन से आपकी बात होती है। ऐसा नहीं है कि यहाँ से फ़ोन मिला और अमेरिका मिल जाएगा, तो काफ़ी डिस्टेंस हो जाता है, तो बाई एयर ऐसी कनेक्टिविटी नहीं होगी। तो यहाँ से सिग्नल आपके टावर पे जाता है, आपके टावर से जो मुंबई पोर्ट पे टावर है वहाँ से, फिर वहाँ से फाइबर वायर के थ्रू न्यूयॉर्क में जो टावर है वहाँ पे जाता है, फिर बाकी एरिया में उस टावर से डिस्ट्रीब्यूट होता है सिग्नल। ऐसे आपका कम्युनिकेशन होता है। ये जो इंटरनेट चल रहा है वो इसी तरीके से चलता है। क्लियर पॉइंट। फेस्ड विद माउंटिंग कंपटीशन टेलीफोन companies all communication. Human beings have used different method long distance communication, of which the telegraph and the telephone were important. The telegraph was instrumental in a colonization of America West during the early and mid 20th century. The American Telegraph and Telephone Company enjoyed a monopoly over USA telephone industry. In fact, the telephone became a critical factor in the urbanization of America. Firms centralized their functioning at city headquarters and located their branch offices in small towns. तो ड्यूरिंग दिस जो मिड 20th सेंचुरी क्या होता है, द अमेरिका टेलीग्राफ एंड टेलीफोन कंपनी जो होती है इंजॉयड एक मोनोपोली और यूएसए टेलीफोन इंडस्ट्री। तो कभी एक मोनोपोली थी, उस मोनोपोली से बाहर निकल कर आज हम बात करें तो कम्युनिकेशंस में काफी सारा रिवोल्यूशन आ चुका है। अब बात आती है सैटेलाइट, जहां से क्वेश्चन बनेगा आपका मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट रहेगा, आपका एमसीक्यूज भी बनेंगे यहाँ से। सैटेलाइट कम्युनिकेशन की जब हम बात करते हैं तो आपका कम्युनिकेशन कैसे होता है? सैटेलाइट आसमान में जो लॉन्च किया जाता है उसमें जो ये सिग्नल रिसीव करता है फिर आपको डिस्ट्रीब्यूट करता है, तब जाके आपका कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है। इंडिया हैज आल्सो मेड ग्रेट स्ट्राइड्स इन सैटेलाइट्स डेवलपमेंट्स। तो स्ट्राइड्स इन सैटेलाइट्स डेवलपमेंट क्या क्या किए हैं, जिसमें सबसे पहला है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो सैटेलाइट है वाज लॉन्च्ड 19 अप्रैल 1979। तो 19 अप्रैल 1977 को आर्यभट्टा जो है लॉन्च किया गया था। ये आपका उस टाइम की अगर बात करें अप्रैल, तो अप्रैल 1979। फिर आता है भास्कर 1 जो 1979 में लॉन्च किया गया। फिर उसके बाद आता है रोहिणी, रोहिणी जो लॉन्च किया गया 1980 में। उसके बाद आता है ऑन दी 18 जून 1981 वो आता है एप्पल, और एप्पल की फुल फॉर्म क्या बनती है? एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट जो किया गया वाज लॉन्च्ड थ्रू एरियन रॉकेट के थ्रू इसको लॉन्च किया गया था, जिसे एप्पल कहा गया है। कंप्लीट है पॉइंट। भास्कर challenges and INSAT 1B have made long distance communication, television and radio every effective. Today weather forecasting through television is a boon. तो आज जो टेलीविजन के द्वारा टुडे वेदर फोरकास्टिंग थ्रू टेलीविजन इज ए बोन। जैसे आप देखते हैं टेलीविजन में जो फोरकास्टिंग होती है, कल मौसम साफ रहेगा, ये सब कुछ बताया जाता है, वो सैटेलाइट्स की मदद से ही बताया जाता है, जिससे लोगों को काफ़ी फायदा होता है। ठीक है। फिर आता है सैटेलाइट कम्युनिकेशंस। टुडे इंटरनेट इज द लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट इलेक्ट्रॉनिक network on the planet, connecting about 1000 million people in more than 100 कंट्रीज। तो अगर हम बात करें आज इंटरनेट लार्ज इलेक्ट्रिक नेटवर्क बन चुका है। कम्युनिकेशन थ्रू सैटेलाइट emerged as a new area in communication technology since 1970 after USA and former USSR pioneered space reaches. Artificial satellites now are successfully developed in the Earth's orbit to connect even the remote corners of the globe with limited on-site verifications.
These have rendered the unit cost and time of communications invariant in terms of distance. This means it costs the same to communicate our 500 kilometer as it does our 5000 kilometer via satellites. So this means cost the same to communicate our 500 किलोमीटर as it does our 5000 via satellites. तो जो कॉस्ट हमारी कम्युनिकेशन करने के लिए एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जो कम्युनिकेशन का जो हमारा एक्सपेंडिचर आता था, जो एक्सपेंडिचर हमारा 500 किलोमीटर पे आता था, वो उतना ही खर्चे में आज हम कम्युनिकेट कर पाते हैं, तो 5000 किलोमीटर दूर बैठे लोगों से कनेक्टिविटी कर सकते हैं, ऐसा अब हो चुका है। तो जो हमारा खर्चा पहले 500 किलोमीटर तक का कम्युनिकेशन के लिए आता था, आज हम उसी खर्चे में 5000 किलोमीटर तक का कम्युनिकेशन कर सकते हैं। साइबर स्पेस इंटरनेट, तो साइबर स्पेस इंटरनेट होता क्या है भाई? साइबर स्पेस internet. The speed at which this electronic network has spread is unprecedented in human history. There were less than 50 million internet users in 1995, about 400 million in 2000 AD, and over 2 billion in 2010. तो जो इंटरनेट की जो रिवोल्यूशन आया है, जो यूजर्स बढ़े हैं, वो यूजर्स जो बढ़ के कहाँ तक चले गए हैं? पहले 50 मिलियंस इंटरनेट यूजर थे 1995 के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद 400 मिलियन यूजर हो गए 2002 के अंदर, 400 मिलियन हो गए। और उसके बाद जो 2010 तक आते आते जो और 2 बिलियंस 2010, तो ये numbers of users बढ़ रहे हैं कंटिन्यू। इन द लास्ट फ्यू ईयर्स देयर हैज बीन ए शिफ्ट अमोंग ग्लोब यूजर्स फ्रॉम यूएसए टू द developing countries. The percentage share of USA has dropped from 66 in 1995 to only 25 in 2005. Now the majority of the world's users are in USA, UK, Germany, Japan, China and India. तो ये मेजर यूजर्स हो चुके हैं आज की डेट में। Cyberspace is the world of electronic computerized space. It is encompassed by the internet such as World Wide Web, World Wide Web, World Wide Web. In simple words, it is the electronic digital world for communicating communicating or accessing information our computer networks without physical movement of the sender and receiver. It is also rendered to as the internet. Cyberspace exists everywhere. It may be in an office, sailing boat, flying plane and virtual anywhere. तो साइबर स्पेस जो है एग्जिस्ट एवरीवेयर करता है और इट इज आल्सो रेफर्ड टू एज ए इंटरनेट। तो जैसे साइबर स्पेस को हम एक इंटरनेट कहते हैं, तो इंटरनेट जो है हमेशा हर जगह, आप जो ये वीडियो देख रहे हैं ये भी इंटरनेट की मदद से ही देख रहे हैं। तो इस तरीके से हम बात करेंगे। तो यहाँ पर इस लेसन्स के अंदर हमने ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन को अच्छे से रीड किया। आई होप आप अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो चुका होगा आपको चैप्टर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे विद न्यू स्लाइड्स। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, हैव ए नाइस डे।